Hello, Tulika. Good morning. What topic start? I hope Unit 3rd is complete. तो Unit 4 में पहला टॉपिक क्या था बेटे? ये तो हो चुका ना? ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं। हाँ, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। रिवर्स चार्जेस यानी अंडर इनडायरेक्ट टैक्स liability to pay tax is imposed on the supplier of goods and services. Okay, I hope everybody knowing this statement, this concept. The liability to pay tax is imposed on supplier of goods and services. Any doubt? Hello, under indirect tax क्या होता है? What type of concept? Any liability to pay tax is imposed on the supplier of goods and services. ठीक. सेकंड, सप्लायर ट्रांसफर। सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर ट्रांसफर द burden of tax to the recipient of goods and services. Any doubt? I hope this concept is clear. Under the indirect tax, liability to pay tax imposed on supplier of goods. After that, supplier transfer the burden of tax to the recipient of goods. But in certain cases, although it is possible, but is inconvenient for the government for collection of tax from supplier of goods and services. For example, when goods are sold by unregistered person to registered person, the tax cannot be recovered from supplier because such unregistered supplier is not allowed to collect tax. Okay, so it will result into loss of revenue for the department if the policy to collect tax from supplier, in any such circumstances, if the responsibility of liability for payment of tax is shifted from supplier to recipient, the tax collection mechanism will be faster and convenient by avoiding such leakage in tax revenue. Any doubt? हेलो, नहीं समझ में आया अभी? अब एक स्टेटमेंट लिखिए आप, लिखिए एक स्टेटमेंट। द शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स
the shifting of liability to pay tax directly by recipient to the government will ensure smooth functioning of tax collection. This is technically this is technically termed as reverse charge mechanism. Clear? हेलो तुलिका, बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो टैक्स शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेटे, इसी को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अब अंडर दिस टॉपिक, what type of topic any discuss? There is a first topic, type of charge in GST. Second, forward charges. Third, reverse charges. अब रिवर्स चार्जेस जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें 3 टॉपिक और आ जाएंगे, सब टॉपिक. पहला, मोड ऑफ पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस. दूसरा, प्रोविज़न अंडर जीएसटी फॉर रिवर्स चार्जेस. तीसरा, अंडर नोटिफिकेशन. और सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा मेन हेडिंग वाला, डिफॉल्ट प्रोविज़न अंडर द एक्ट. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट. पहला टॉपिक आपका है टाइप ऑफ, हाँ रिवर्स का सेकंड है बेटे प्रोविज़न. प्रोविज़न डिस्कस करने पड़ेंगे. पहले में मोड ऑफ पेमेंट, दूसरे में प्रोविज़न, और तीसरा नोटिफिकेशन. तो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ चार्जेस इन जीएसटी. तो you are also discuss, I hope, there are basically two parties in a supply. One is supplier and after other one is recipient. Okay, hello, hello. And there are basically two parties in a supply. One is supplier, another one is recipient. And second point, the liability to pay GST is determined on the basis of charge mechanism. It can be two types. First, forward charge mechanism. Second, reverse charge mechanism. Okay. First क्या होगी बेटे? And second, reverse charge mechanism. So in the normal courses, GST is payable by taxable person. Any doubt? GST is payable by taxable person who is supplying goods and services. Taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or 24 of the GST Act. Payment of tax on the supplier of goods and services is called as forward charge mechanism. शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको FCM. FCM is applicable. Any doubt? आई होप समझ में नहीं आया अभी. मतलब
मतलब जैसे हमारा कहना ये है कि पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज अगर हम बात करते हैं बेटे, अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, तो हु इज लायबल? एक्सप्लेन मी। You mean say that supplier? Yes, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर इज लायबल, और रिवर्स चार्ज में कौन होगा? वेरी गुड, आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर लायबल होगा और रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट लायबल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है फॉरवर्ड चार्ज में, इट इज अवेलेबल, ओके। एनी डाउट? और जो रिवर्स चार्ज होता है बेटे, उसमें दिस लिमिट इज नॉट अवेलेबल। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनवाइस, है ना, एंड डॉक्यूमेंशन। तो जो फॉरवर्ड चार्ज की हम जब बात करेंगे तो वहाँ टैक्स इनवाइस, रिसिप्ट वाउचर और रिफंड वाउचर, ये तीन तरह के इनवाइस और डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं तो यानी टैक्स इनवाइस और पेमेंट वाउचर की बात करेंगे, लेकिन जो टैक्स इनवाइस होगा इफ नॉट रिसीवर फ्रॉम सप्लायर, ओके। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स की। तो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर हम फॉरवर्ड चार्ज की बात करें तो बोथ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, आर अवेलेबल, ओके। बट रिवर्स चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज अवेलेबल। एनी डाउट? हेलो? एफसीएम? एफसीएम का मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटे। नहीं नहीं, हाँ उसमें वही मतलब क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों अवेलेबल होते हैं। और जब रिवर्स चार्ज की बात करेंगे तो ओनली कैश लेजर, क्रेडिट लेजर इज नॉट अवेलेबल, ओके। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो भाई टाइप ऑफ चार्जेस इन जीएसटी इज क्लियर, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज इज क्लियर। अब हम रिवर्स चार्ज में मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटे? मोड ऑफ पेमेंट की बात। तो अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 अंडर जीएसटी एक्ट, है ना, amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under CGST, IGST। हेलो? बात समझ में आ रही है बेटे? यानी जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, it should be paid by cash only, it means it will be paid through electronic cash ledger only। हम्म। अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें, और इसको डेप्थ में स्टडी करने के लिए
आउटवर्ड वर्सेस इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्जेस। ओके। अब देखिए, ये जो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ बेटे आपको, आउटवर्ड वर्सेस इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्जेस, इसको स्टडी करने के लिए हमें 4 पॉइंट का बेस बनाना होगा। वो पहला पॉइंट, पहला बेस हमारा होगा टैक्स लायबिलिटी। पहला बेस क्या होगा हमारा? वेरी गुड। सेकंड बेस होगा रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेकंड बोलिए। वेरी गुड। थर्ड होगा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर। और लास्ट होगा फ्लैट रेट टैक्सेशन स्कीम। फ्लैट, फ्लैट, FLAT, रेट टैक्सेशन स्कीम। अब देखिए, हम आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM, यू नो RCM? हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए, फाइनल हो गई। ऑनलाइन आ गई, स्कीम आ गई। स्कीम। हाँ, अब ये एक्चुअली पॉलिसी मैटर है बेटे, इसमें हाँ, हाँ, हाँ। भाई वो नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि उसके पीछे एक प्रॉब्लम ये है कि वो पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं आपके। ठीक है। वो पेपर आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, और वो किसी वजह से, मतलब वही कोरोना ही वजह थी बेसिकली, जिसकी वजह से वो रह गए। तो अब इस समय सिचुएशन नॉर्मल है। तो आई होप उसको जो है जल्दी से करा करके ख़त्म किया जाएगा। ठीक है। और वो जो थर्ड लहर आने के चांस हैं, वो आपका वही पीरियड ऑफ टाइम होगा आई होप, जिसमें आपके सेकंड, फोर और सिक्स के एग्ज़ाम होंगे बेटे। तो उस वक्त के लिए उन्होंने पहले से ही एक पॉलिसी मेंटेन कर ली है कि 1.5 घंटे का पेपर और ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं अच्छे से। अगर उनको लेके कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट डायरेक्टर को संपर्क कर सकते हैं अपनी बात। अब देखिए, उसके लिए पढ़ना कहाँ है, वो तो पढ़ चुके हैं ना आप ऑलरेडी। एक रिवीजन करना है। हाँ, बस ये बात है कि दिमाग आपका जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये तो बात है भाई। लेकिन अब दिमाग की बात ना मानो, इस समय जो दिल कह रहा है वो करो। अरे, ये कैसा दिल है भाई, जो अपने करियर के लिए नहीं ध्यान दे रहा। अच्छा। हाँ, बहरहाल, बहरहाल आपको ये पॉलिसी एक्चुअली माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास वक्त भी नहीं है इसको बात करने का, और कहने सुनने का वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा आपको।
तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अच्छे से रिवाइज कर लें। गुड मॉर्निंग बेटे। हाँ, जैसे 3 घंटे हो रहे थे वैसे ही। हाँ, अभी ईशु भाई ने अनऑफिशियली अनाउंस कर रखा है। हाँ, अभी अभी हॉटलाइन पे बात करके गए मैडम से। आए हुए थे जनाब। लीजिए, आज से 20 तारीख से पढ़ा रहे लगातार कॉलेज में ही आकर के ऑनलाइन। लगातार 20 तारीख से लगातार ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज से ही हो रही हैं। ऑफिस सारे खुले हैं। सारी चीजें खुली हुई हैं बेटे। एवरी डिपार्टमेंट। चलिए, नाउ वी स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो पहला बेस क्या था मोना जी? द फर्स्ट बेस टैक्स लायबिलिटी। ओके। तो अंडर द आउटवर्ड सप्लाई, supplier is not liable to pay tax on such outward supply. ओके। अगर हम आरसीएम की बात करें तो अंडर आरसीएम मतलब सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन सच आउटवर्ड सप्लाई। ओके। अगर हम इनवर्ट सप्लाई की बात करें तो रिसिपिएंट shall be liable to pay tax on such inward supply. Any doubt, anybody? And second point, related input tax credit. So under the outward supply, supplier is not entitled to avail ITC on such outward supply. अगर हम इनवर्ट सप्लाई की बात करें तो आफ्टर पेमेंट ऑफ जीएसटी recipient may avail ITC if he is otherwise fulfilling all conditions related to availment of ITC। है ना? यदि वो आईटीसी की अदर कंडीशंस जो भी हैं रिलेटेड कंडीशंस अगर वो फुलफिल कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन entitled to avail ITC। ओके। avail 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 ITC यानी आफ्टर पेमेंट ऑफ जीएसटी recipient में avail ITC। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन जोड़ दी है उसमें, इफ, है ना, he is fulfilling all conditions related to ITC। अगर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो सारी अगर वो फुलफिल कर रहा है तब। अब बात करते हैं तीसरे बेस की, एग्रीगेट टर्नओवर। तो अंडर द एग्रीगेट टर्नओवर दैट मीन्स सप्लाई सेल बी कंसीडर्ड in as part of aggregate turnover under the outward supply, but inward supply any such supply being inward supply shall not be considered in the part of aggregate supply aggregate turnover। ओके। हेलो। यानी आउटवर्ड सप्लाई में कंसीडर हो रहा है। ओके। बट इनवर्ड सप्लाई में aggregate turnover is not considered। And last, flat rate taxation scheme।
If supplier is composite supplier, तो he shall not be liable to pay GST. अगर वो composite supplier है तो, and other scheme he is liable, but recipient is composite supplier, he will be liable to pay full GST on inward supply. So I hope concept is clear. Difference between outward and inward supply under RCM. अब जो दो टॉपिक और थे आपके, प्रोविजन और नोटिफिकेशन, इन दोनों के लिए बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको बेटे, समझे? इन दोनों पॉइंट को बुक से रीड करना होगा. देन यू हैव डिस्कस मी. एनी डाउट एनीबडी? आई होप लास्ट टॉपिक था डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज. You know default. Anybody explain? Hmm. That means under this concept, GST, है ना, any in respect of supply of taxable goods or services, है ना, by supplier, ठीक है, यानी who is not registered, who is, बोलो, not registered, to registered person shall be paid by recipient on reverse charge basis. So this provision apply to any kind of taxable goods or services, है ना, supplied by unregistered person and registered person. तो as per notification number 38 2070 CT, है ना, तो in respect of reverse charge on supply, है ना, received from unregistered person has been suspended for the period from 13th क्या कहेंगे, 13th अक्टूबर, अक्टूबर 9वां महीना होगा, 10वां अक्टूबर, हाँ 13 अक्टूबर 2017 to 31st March 2018. अगर आपने बुक परचेस कर ली है तो थोड़ा सा बुक की हेल्प लीजिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट इज आल्सो गिवन अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4. जो मैंने बुक बताई थी टैक्समैन वाली GST, उसका पेज नंबर 201 में ये कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर. पेज नंबर 119, 200 and 201 is also clear. अब हम आपको ये जो जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं राइट डाउन करा रहा हूँ, और उसको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे लगेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया है. प्लीज राइट डाउन द इंफॉर्मेशन. एवरीबडी रेडी? The person liable to pay GST in the following independent cases.
the person liable to pay GST in the following independent cases. The recipient is located in taxable territory in all the cases. The recipient is located in taxable territory in all the cases. ये 4 केसेस हैं. पहला केस राइट डाउन करिए. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन arbitral tribunal to any business entity. उत्कर्ष गुप्ता, उत्कर्ष, मोना, सैफाली, मोना, मोना कहाँ गई? मोना, उसको बोलो बात करे, बोल नहीं रही. अब आ रही है, अब आ रही है. मोना जी, मैंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रायल, ARBITRAL. आर्बिट्रायल क्या पढ़ेंगे इसको? ARBITRAL. TRAL. और आर्बिट्रायल और दूसरा वर्ड है ट्राइब्यूनल, TRIBUNAL. हाँ, ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी. तो ये जो स्टेटमेंट है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी. बताइए. पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है, तब तो एक्सप्लेन कर पाओगे. इसका मीनिंग चेक करो जरा, आर्बिट्रायल का क्या है और ट्रिब्यूनल. गूगल डाल के देखो जरा क्या है मीनिंग, तब मीनिंग समझ में आएगा, तब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. बहुत लंबा दे रहे हैं, इतना लंबा कहाँ समझ में आएगा. और सेकंड मीनिंग नहीं दे रहे हैं कोई. ये आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल मतलब एक एक केस है आपका, एक स्टेटमेंट है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी. जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया था RCM, तो वो वही जानना चाह रहे हैं कि इन दैट सिचुएशन RCM इज एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल. तो अगर ये मीनिंग क्लियर हो जाए कि आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी. हाँ, तो ये हो सकता है कि इसमें हमारी समझ से. उत्कर्ष गुप्ता जी का क्या कहना है?
उत्कर्ष कहाँ चला गया? उत्कर्ष। हाँ हाँ हाँ, तो ये इनका कहना है कि अगर इस ट्रिब्यूनल के थ्रू कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो इन दैट सिचुएशन एनी रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, यानी जीएसटी इन सर्विस ट्रांजेक्शन शैल बी पेबल बाय द रिसिपेंट। Recipient, that means business entity. Okay. And second case है renting of immovable property services. Renting of immovable property service provided by central government to a business entity. अब इसमें आरसीएम इज एप्लीकेबल इज नॉट एप्लीकेबल ये आपको बताना है। रेंटिंग, RENTING, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, एक होता है ना मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच टाइप ऑफ फिक्स, है ना, प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। देखिए बेसिकली तो यहाँ कहा जा रहा है कि रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। क्या कहा जा रहा है बेटे? रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, लेकिन बता रहे हैं जनरली जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस, है ना, ये ऑलरेडी वाली पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस होती है। हाउएवर, और जहाँ पर बात आ रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इज एन एक्सेप्शन टू इट। सो जीएसटी इज पेबल बाय सप्लायर, सप्लायर दैट इज गवर्नमेंट, supplier that is government, government. And third case, sponsorship services provided by company to an individual। यहाँ बताइए जीएसटी यानी आरसीएम इज एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? Sponsorship services provided by a company to an individual, to individual। No, reverse charge is not applicable because sponsorship services have been provided to an individual. Any GST is payable under forward charges by the supplier। ठीक है? किस वाले में? उसमें तो रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल। सेकंड लास्ट केस है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉरपोरेट बाय अ कॉरपोरेट बॉडी, मतलब एक कॉरपोरेट बॉडी दूसरी कॉरपोरेट बॉडी को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। बट अगर एक कॉरपोरेट दूसरे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेगी, इट इज नॉट एप्लीकेबल। जब एप्लीकेबल हो रहा है तो वहां रीजन बताया जा रहा है कि रेसिपेंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। ओके।
ओनली 18 स्टूडेंट ऐड हुए, ओनली 18 स्टूडेंट, बताइए। सेक्शन सी में सिर्फ 18 स्टूडेंट का एडमिशन है। अच्छा। हम्म, बिना बुलाए बिना बताए नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए। तो आई होप दिस टॉपिक इज कंप्लीट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, मेरे लेवल पे ये एकदम कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा आपको एक हेल्प करनी होगी, जो नोटिफिकेशन और प्रोविजन की बात हो रही बेटे, उसमें थोड़ा सा बुक से आप पढ़िए उसको अच्छे से। आफ्टर दैट फिर अगर कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, देन यू डिस्कस मी। ओके, तो यूनिट फोर्थ का आज आई होप सेकंड टॉपिक इज क्लियर। फर्स्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इज क्लियर एंड सेकंड आरसीएम इज क्लियर। अब आई होप कितने टॉपिक बचे इसमें फोर्थ में? हाँ, एक बचा है। हाँ, एक ही बचा होगा, रिटर्न अंडर जीएसटी। चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिटर्न अंडर जीएसटी, लास्ट टॉपिक ऑफ द फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे, है ना। नो नो, लीव नो। ओके बेटे।